Hello students, today we will discuss about the next topic, that is the internal resistance of the cell. So it is the internal resistance of the cell. Now ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ internal resistance मतलब ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ resistance। ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? This is a cell। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। This is the electrolyte in the cell। ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਡਸ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਰੋਡਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਟੂ ਰੋਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। Second, area of electrodes, immersed in electrolyte। तीसरा, distance between electrode। इलैक्ट्रोड्स ਦੇ ਵਿੱਚ distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ। Now after this we come to the second topic, that is what is the EMF of the cell। Cell ਦਾ EMF ਕੀ ਹੈ? EMF means electromotive force। कि ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਜਾਂ EMF ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ E ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Now there is a voltmeter over here। Now the circuit is, that is open circuit। Now here the circuit is open, मतलब सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਆਫ। ਓਪਨ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਆਫ, ਸਰਕਿਟ ਆਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਿਟ ਆਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, that is known as the EMF of the cell। So what is EMF of the cell? It is the potential difference across the terminals of the cell when no current is flown from the cell। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ
नहीं कर रहे या सैल दे कोलों असी कोई भी एनर्जी नहीं लै रहे उस टाइम जिन्नी इस सैल दे अंदर टोटल एनर्जी है दैट इज़ नोन एज द EMF ऑफ द सैल। तो अगर असी इस सर्किट नू ऑन कर दिए नाउ दिस इज़ द सैल, दिस इज़ द सैल, इलैक्ट्रोलाइट इलैक्ट्रोड और असी इहदे तो एनर्जी सर्किट नू ऑन कर दिए। नाउ द सर्किट इज़ ऑन, स्विच इज़ ऑन, सर्किट इज़ क्लोज्ड, क्लोज सर्किट है असी की नू ऑन करता तो सर्किट तो जिहड़ा करंट है वो फ्लो करना शुरू कर रहे उस टाइम वोल्ट मीटर दे विच जिहड़ी रीडिंग आएगी दैट इज़ नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जदों असी सर्किट ऑफ रखे उस टाइम वोल्ट मीटर च रीडिंग जिहड़ी आई दैट इज़ नोन एज द EMF ऑफ द सैल। तो जदों असी सर्किट नू ऑन किया उस टाइम वोल्ट मीटर दे विच जिहड़ी रीडिंग आई दैट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इनू असी V दे नाल लिखने आ, इनू असी E दे नाल लिखने आ। नाउ फर्क की है, फर्क है इत्थे असी सैल कोलों एनर्जी लिती, एनर्जी लैन दे नाल ओहदी एनर्जी ओहदा पोटेंशियल घट गया क्योंकि असी करंट ले लिया, सर्किट कोलों करंट ले लिया, ओहदे कोलों एनर्जी ले ली इन फॉर्म ऑफ करंट, एनर्जी लैन नाल ओहदा पोटेंशियल घट गया मतलब टैंकी चो पानी कड्डांगे तो ऑबवियसली वो टैंकी चो पानी घट हो जाएगा, ओहदा पोटेंशियल घट गया उस टाइम जिन्ना ओहदे कोल पोटेंशियल रह जाएगा जो असी ओहदे कोलों करंट लै रहे हैं दैट इज़ नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जदों असी इस सैल तो EMF करंट पोटेंशियल लिता ही नहीं, एनर्जी लिती ही नहीं करंट वास्ते तो जिन्ना भी वो कोल EMF रहेगा, जिन्ना भी वो पोटेंशियल रहेगा दैट इज़ नोन एज द EMF ऑफ द cell. Now this is the difference between EMF of the cell and the terminal potential difference of the cell. Now relation between R, E and V इन्हां विच की रिलेशन। Now suppose है साडे कोल सेल है पॉजिटिव और नेगेटिव इहदे अक्रॉस असी वोल्ट मीटर लगा देंगे, देयर इज़ अ वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस तो ये तो असी इनू एक रजिस्टेंस नाल जोड़िया नाल की दे नाल जोड़िया दिस इज़ ऑफ तो दूसरा सैल है साडे कोल इनू भी उपर असी वोल्ट मीटर नाल ज्वाइन किया तो दूसरे पासे वो रजिस्टेंस तो की ऑन है वो इत्थे जिहड़ा पोटेंशियल आ रहा दैट इज़ E जो असी ऑफ की ऑन करता उस वेले जिहड़ा पोटेंशियल आएगा दैट इज़ V। ना सब तो पहला वैन की इज़ ऑफ या सर्किट इज़ ओपन जो साढ़े को ओपन सर्किट है एट दैट टाइम सर्किट ओपन होंदे टाइम वैन द सर्किट इज़ ओपन एट दैट टाइम नो करंट इज़ फ्लो I इज़ इक्वल्स टू 0 दे बराबर है। वैन द की इज़ ऑन तो जो असी की यदि ऑन करने या सर्किट नू क्लोज करने करंट आई जिहड़ा फ्लो करता है दैट इज़ इक्वल्स टू किहदे बराबर है पोटेंशियल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस के बराबर है। EMF है E तो टोटल रेजिस्टेंस है AR, टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r, सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r ये बराबर हो गया। नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप जो करंट लवांगे ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल बाहर निकलेगा, कितना पोटेंशियल बाहर निकलेगा द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल दैट इज़ इक्वल्स टू करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा IR तो बाकी जड़ा वोल्ट मीटर से रीडिंग आएगी दैन वोल्ट मीटर रीडिंग दैन वोल्ट मीटर रीडिंग दैट इज़ इक्वल्स टू V कितने बराबर आएगी E माइनस IL क्योंकि V टोटल EMF E सी जो असी वो कोलों
कोई भी एनर्जी या EMF या किसी तरह का भी पोटेंशियल नहीं रह रहे उस टाइम वो कोल टोटल वैसे सैल के कोल टोटल पोटेंशियल कितना सी ई तो जदों असीं उहदे कोलों पोटेंशियल IR ले लिया फॉर द करंट तो साडे कोल बाकी कितना रह गया दैट इज़ V बाकी पोटेंशियल कितना रह गया दैट इज़ V जिहड़ी कि वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी सो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी V E - IR इन्ना पोटेंशियल असी जो सर्किट नूं क्लोज किया उदों लिता ड्यू टू करंट के फ्लो वास्ते E - IR दे बराबर होएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ना इत्थे इफ I इज इक्वल्स टू 0 V के बराबर होएगा E के बराबर अगर I नू 0 पुट कर दो V दैट इज इक्वल्स टू E। ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR दे बराबर ओके सो V that is equals to IR so I that is equals to V over R दे बराबर है सो I कितना आ गया that is equals to I की वैल्यू पुट कर दिए दिस वन that is equals to E over R plus R into V over R ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ R ਦੀ ਵੈल्यू ਕੱਢਣੀ है सो इट इज़ अगर इनू इधर ले आइए E over V इज इक्वल्स टू R plus R over R आ जाएगा सो R कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू E R over V दैट इज इक्वल्स टू R plus R और E R over V माइनस R दैट इज इक्वल्स टू R तो R की वैल्यू कितनी आ गई दिस इज इक्वल्स टू R कॉमन निकाल लिया E over V minus 1 into R. So this is the relation between V and R.